This is Delhi. Please stand by for our next broadcast. This is All India Radio. We now bring to you the recording of today's proceedings during the question hour in Lok Sabha. ये आकाशवाणी है. अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुनेंगे. माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी. प्रश्न संख्या 281. Question number 281 by Shri Vivek Narayan Shejwalkar. Will the Minister of Culture be pleased to state A. Whether Central Financial Assistance CFA is provided to the states for the development of tourism and maintenance of historical heritage structures. B. If so, the details thereof, along with the details of the amount released during the last 3 years state-wise. C. Whether the government will consider providing CFA for the development of tourism and maintenance of historical heritage structures located in Gwalior Rural, Kalera, Dabra and Bhitarwar Legislative Assembly constituencies apart from Gwalior City in Gwalior Lok Sabha constituency. And D. The details of the amount released by the government to the state governments for the development of tourism during the last 5 years. प्रश्न क्रमांक 281 माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद. मैं कुछ और 2 जानकारियां जानना चाह रहा हूं आपके माध्यम से. ऐतिहासिक स्मारकों के पर्यटन की दृष्टि से विकास और रखरखाव में अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र व सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी स्वागत योग्य है. मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि एएसआई द्वारा घोषित प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में पूजा प्रार्थना आदि गतिविधियों को अनुमति दिए जाने संबंधी शासन की क्या नीति है? माननीय आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय है. दुर्ग आप देश की अपनी अमूल्य अपनी सीट पर पुरातात्विक विराजें. धरोहर में शुमार होता है. इस दुर्ग का गौरवशाली प्रश्नकाल के इतिहास भी है. माध्यम से इसमें विश्व के पर्यटकों जनता को के महत्वपूर्ण आकर्षित सवालों करने को की अपार पूछें संभावनाएं हैं. और सरकार की जवाबदेही तय करें. माननीय मंत्री में जी, शामिल करने हेतु क्या कार्रवाई कर रही है माननीय मंत्री से मैं जानना चाह रहा हूँ. मान्यवर, सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं घोषित की गई हैं और मध्य प्रदेश के लिए भी जो योजनाएं घोषित की गई हैं उसका भी विवरण इसमें लगाया गया है. सारी योजनाओं की सूची इसमें लगाई गई है. अगर अध्यक्ष कहें तो मैं हर एक को पढ़ के आपको बता देता हूं. वैसे तो हम यहाँ पर चर्चा कराना चाहता हूं. केंद्र सरकार आप चर्चा नहीं करना चाहते, जनता के महत्वपूर्ण सवालों को उठाना नहीं चाहते, ये गलत बात है. सदन की कार्रवाई आज 11:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. The House reconvened at 11:30 a.m. with Shri Rajendra Agarwal in the chair. माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी. क्वेश्चन नंबर 282 श्री सुब्रत पाठक. Question number 282 by Shri Subrat Pathak, Shri Srirang Appa Barne. Will the Minister of Petroleum and Natural Gas be pleased to state A. The details of the demand for petrol, diesel and other petroleum products during 2019-20 and 2020-2021, particularly during lockdown periods. B. The details of the import of petroleum products during the said period. C. The details of the domestic demand of various petroleum products met from domestic production. D. The details of works undertaken by the Indian oil companies to increase the oil production in the country during the said period and the extent to which they have been able to achieve their schedules. E. The steps taken by the government to ensure that Indian oil companies are prepared to fully meet the demand for petrol, diesel and other petroleum products in the country in the near future. And F. The steps taken to protect the refineries in case of war, natural calamity and act of terrorism. Shri Hardeep Singh Puri, Minister of Petroleum and Natural Gas. Honorable Minister, sir, a statement is placed on the table of the House. Question number 283, Shri Gopal Shetty ji. Question number 283 by Shri Gopal Chinaya Shetty, Shri Arvind Ganpat Sawant. Will the Minister of Culture be pleased to refer to the reply given on 10/2/2020 to Unstarred question number 1192 regarding status of classical language to Marathi and state A.
whether the government has completed consultations and the work of reviewing the criteria related to classification as a classical language for granting status of classical language to Marathi. B. If so, the details along with the current status in this regard. C. Whether the state government of Maharashtra has again requested the union government to grant the status of classical language to Marathi. D. Whether Marathi language has been granted the status of a classical language. And E. If not, the present position in this regard. Shri Arjun Ram Meghawal, Minister of Culture. माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष, क्वेश्चन नंबर 283 सप्लीमेंट्री प्लीज। 283 सभा पटल पे रखा गया है। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस प्रश्न को पूछने का अवसर प्राप्त करके दिया। इस प्रश्न के पीछे मैं 2014 से लगातार काम कर रहा हूं। मेरे अन्य साथी भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसके पहले के लोगों ने भी किया होगा। मैं पूर्व मंत्री प्रहलाद पटेल जी का अभिनंदन करता हूं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया। मद्रास के उच्च न्यायालय में सब केसेस चलते थे, उस सारे केसेस का निपटारा एक साथ में होकर सरकार को निर्णय करने के लिए कहा गया। सरकार ने 3 मैन कमेटी बनाई और 3 मैन कमेटी का इतिहास ऐसा हो गया अध्यक्ष जी, एक की मृत्यु हो गई, दूसरे ने वीआरएस ले लिया और तीसरा रिटायर हो गया। फिर प्रधानमंत्री ने उसमें हस्तक्षेप करके नए कमेटी का गठन करने के लिए कहा और नए कमेटी का गठन प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में हुआ है और वो अभी काम कर रही है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं कभी कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कुछ काम कुछ लोगों के भाग्य में लिखा हुआ होता है। मैं ऐसा मानता हूं कि अभी के जो हमारे मंत्री हैं उनके भाग्य में ये महाराष्ट्र का ये काम लिखा हुआ है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इसका निपटारा कब होगा और मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति जी। माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज उपस्थित किया है इस सर्वोच्च सदन में। मैं सभापति जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए जो एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी उसकी सिफारिश भी पक्ष में आई है, जैसा सदस्य ने भी जिक्र किया है। अक्टूबर 2004 का एमएचए का एक नोटिफिकेशन है और नवंबर 2005 का भी एमएचए का एक नोटिफिकेशन है, जिसके तहत क्लासिकल लैंग्वेज का काम संस्कृति मंत्रालय के पास आया और उसके बाद इसमें काम हुआ। और जैसा माननीय सदस्य ने भी कहा है कि काफी काम तेज गति से आगे बढ़ा है, लेकिन मामला अभी अंडर कंसिडरेशन है। जिस कमेटी की बात माननीय सदस्य कर रहे थे उसमें 8 मेंबर्स कमेटी बनी है और वो मुझे लगता है कि संपूर्ण तथ्यों पर सकारात्मक दृष्टि से चर्चा करके इस दिशा में सकारात्मक दृष्टि से ही आगे बढ़ेगी, मेरा ऐसा मानना है। सेकंड सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष जी धन्यवाद, मंत्री जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक छोटे से गली का काम करने वाले कार्यकर्ता को दिल्ली तक पहुंचाया है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मेरे इस कार्यकाल में महाराष्ट्र को इतने बड़े काम में मेरा उसमें हस्तक्षेप करने का मौका मंत्री जी प्राप्त करके देंगे क्या? धन्यवाद माननीय सदस्य हमारे मित्र भी हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अभी तक जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा जिन जिन भाषाओं को मिला है उसमें तमिल भी है, संस्कृत भी है, कन्नड़ भी है, तेलुगु भी है, मलयालम भी है और उड़िया भी है। मराठी भाषा का जो दर्जा है वो अंडर कंसिडरेशन है। जैसे मैंने कहा कि सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण से सारी परिस्थितियों का विश्लेषण करके और जो माननीय सदस्य ने कहा है उसी दिशा में आगे तेजी से बढ़ेगी। अरविंद सावंत जी, क्वेश्चन नंबर 284 श्री बेनी बेहनन जी। Question number 284 by Shri Benny Behanan, Shri Anto Antony. Will the Minister of Petroleum and Natural Gas be pleased to state: A. The number and the details of vacancies in the Oil and Natural Gas Corporation ONGC, including the dates since when such vacancies occurred, became active. B. Whether the posts of Chairman and Managing Director and Director Offshore have been duly filled up. C. If so, the details thereof, including the dates of such appointments and reasons for the delay, if any, in such appointments. And D. If not, the reasons therefor. Shri Hardeep Singh Puri, Minister of Petroleum and Natural Gas. Shri Anto Antony ji, Honorable Minister. Sir, statement is laid on the table of the House. प्रश्नकाल भी चर्चा का एक बड़ा माध्यम है। आप चर्चा करना चाहते हैं, प्लीज अपने स्थानों पर जाइए
प्रश्नकाल में भागीदारी कीजिए, अपने सवाल कीजिए। सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the recording of today's proceedings during the question hour in Lok Sabha. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.